सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स 2 यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के मान लो उसके जो सॉल्यूशंस है उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब क्यों इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। ओके। Differential equation are the very important of the engineering problems, and the most common differential equation are the Newton seconds law, RL circuit, RC circuit, and RLC circuit. Okay, and in this chapter we will study the method of obtaining the solution of the ordinary differential equation of first order. Okay. Now I wanna say that an equation which involves the differential coefficient is called differential equations. Okay, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो differential, for example, this term shows that this is a differential equation in these terms. Okay, so differential equation which involve the differential coefficient, these are the differential coefficient. Okay, now I wanna show that what is ordinary differentiation of ordinary differential equation. So in this, the equation which involve the function of the single variable is called ordinary differential equation. For example, dy upon dx plus y equal to 0. This is a ordinary differential equation which contains only the one variable. Okay, it's called ordinary differential equation. Now an equation which involve the function of the two or the more variable and the partial derivation of the function is called a partial differential equation. Del y by del x plus del t is equal to 0. These type of equation are called PDE. Okay, partial differential equation. Now, now we will learn order and degree. Okay, it's a simple and basic thing in a basic thing to be learned in differential equations. Okay, let me write a definition of order. The order of highest the highest derivative which appeared in differential equation, okay, is order of d. Okay, let me understand with example. For example, d square y upon dx square plus d cube y upon dx cube plus dy upon dx की power 4 equal to 0. So by the definition we can look the order of the highest differential derivative which appeared in a differential equation is the order of a differential equation. Okay, so in these equations we can see the highest power of a derivative is highest order of the derivative is d की power cube upon dx cube. Okay, so this is a main term we will follow. So order equal to 3. Okay, now in this, as I told, we also learn degree. So in this the degree is 4. It means the maximum power term is used in a differential equations is degree, and maximum derivative is called order. Okay, so degree equal to 4. Okay, I think it should be clear for you, and let me proceed to the next topic. Now we proceed to the solution of the differential equation. There are the two type of the differential equation solution: general solution and particular solution. In general solution, we will solve the differential equation and we have a equal number of the arbitrary constant equal to the order of the differential equation. Okay, for example, I want to say that um,
we have equation, for example, d square upon y dx square plus y equal to 0. So I have two arbitrary constant. Okay, two arbitrary constant. Okay, two arbitrary constant, and in this solution, in particular solution, for this equation I have solution. Okay, by value of arbitrary कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो कहने का सेंस यही है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर बस हम ये बताएंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यूज़ नहीं रखेंगे. इसको मीन फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर सॉल्व किया हुआ है, मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा. ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और उसके साथ मेरे को आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले. और ये बात एक ध्यान रखना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ द डिग्री. जैसे कि इसकी जो डिग्री है, सॉरी इसका जो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर की इक्वल कर रहा हूँ, ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2. सो मेरे को आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 2 मिलेगा. ओके, दैट इज अ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ए जैसे कि ए और बी है ना, ये दो मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर बस सेम है, बस ए और बी की वैल्यू हमें रखनी है, बस इतना ही है. ओके, और एक चीज़ है कि दूसरा मैं आपको ये समझा दूं, लीनियर एंड नॉन लीनियर. ओके, मैंने एन एल लिखा हुआ है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज लीनियर. ओके, ये लीनियर है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी डिफरेंशियल मीन्स किसी भी डेरिवेटिव पार्ट के ऊपर कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं देखा. ओके, और इवन दो ये जो टर्म है ना, मीन्स यहाँ पे क्या है कि हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे जो इसके साथ जो मल्टीपल में है वो एक्स स्क्वायर है. x का मीन्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इन टू डी वाई बाई डी एक्स. तो ये वाला अगर टर्म आ रहा है जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, तो ऐसे टर्म्स लिनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लिनियरिटी को नो डिस्टर्ब. ओके, नो डिस्टर्ब लिख देता हूँ ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, नो डिस्टर्बेंस. ओके, टू लिनियरिटी. बट अगर ऐसा हो कि डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे टर्म्स ना, ऐसे मीन्स यहाँ पे वाई है, ऊपर से यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये नॉन लिनियर हो जाएगा. ओके, या तो फिर ऐसा है कि डी स्क्वायर बाई वाई प्लस, सॉरी सॉरी ओके, प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसकी पावर स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ऐसा इक्वेशन है तो ये भी नॉन लिनियर हो जाएगा. ओके, इतना क्लियर है. उसके बाद अब ना मीन्स टॉपिक पे आते हैं कि हमें सॉल्यूशन करना है ना. अब सॉल्यूशन करेंगे. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मीन्स जो एक बेसिक है, अगर 2 मार्क्स में अगर सॉरी 1 मार्क्स में अगर पूछ ले, तो मैं आपको चीज़ बताऊं. द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डी फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना. एक तो लीनियर भी है, ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना. लीनियर भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज नो एज इज known as Leibniz linear differential equation. ओके, और इसका जो फॉर्मेट है ना, उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, प्लस प्लस वाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, सो ये जो पी ऑफ एक्स है वो होगा एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन. ओके, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, और ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ये होगा कांस्टेंट. ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे. तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है मैं आपको बता दूं. अच्छा, उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा. अगर ये इक्वेशन, अगर जिससे कि फॉर एग्जांपल ये y के टर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन मीन्स
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर को अगर मैं एक्स के टर्म में लिखूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई प्लस सी। मतलब एक्स और मीन्स एक्स की जगह पे मैंने वाई रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई करेंगे। ओके, सो ये भी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इस बात में कोई दोहराया नहीं है। सो होप आप लोगों को यहाँ तक ना बिल्कुल क्लियर होगा, और आपको क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ चला नहीं है कि जिसमें आप लोगों को समझ में ना आए। और हम ऑर्डर और डिग्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्चुअल में हार्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइन एक्स है, डी एक्स है, अब इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है ना, तो इसके अंदर साइन के फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स डाला हुआ है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये चीज़ हम लास्ट में देखेंगे एट एंड ऑफ द वीडियो। सो आप यहाँ तक बने रहिए। ओके, सो आगे चलेंगे। So guys, these are the type of first order and first degree mention। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दोनों एक ही इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यही वाला इक्वेशन ले लो यार, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस सी। तो मतलब यहाँ पे जो डिग्री है वो भी फर्स्ट है और ऑर्डर है वो भी फर्स्ट है। ओके, सो ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन इक्वेशंस होते हैं, वो होते हैं 5 टाइप के, है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ना, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो फिर मीन्स एक्स वाई दिया हुआ है। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैं क्या करूँगा, वाई को ऊपर ले लूँगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, सो यहाँ पे वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे वाई वाई सॉरी इक्वल टू प्लस सी। तो मैं उसके बाद में क्या करूँगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। तो कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना, मीन्स ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस बन जाते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल, जो जिसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बोलेंगे, इक्वेशंस को बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है बट एक्चुअली मैं इस मेथड की बात कर रहा था। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक्स और वाई की पावर सेम होती है, लेबनिज का हमने पहले डिस्कस किया, जिसकी ऑर्डर और मीन्स उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री सेम होती है। ओके, वो कुछ इस प्रकार की होती है, उसको हम लेबनिज बोलेंगे। और बर्नौलीज वो हम आगे देखेंगे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर मैं समझा दूंगा आपको। ओके, सो सबसे पहले ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ताकि आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। सो देखेंगे क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे, वी एस मेथड। ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, सो 9y वाई डैश को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0। सो प्लस 4x को मैं इधर ले जाऊंगा, 9y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 9y डी वाई इक्वल टू माइनस 4x डी एक्स को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब ये कुछ इस फॉर्म में हो गया है, एम ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इस फॉर्म में होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ओके, तो मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे, 9 तो कॉमन है, y का जो इंटीग्रेशन होता है वो वाई स्क्वायर बाई टू होगा। ओके, इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी मैंने इस वजह से लगा दिया है क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो होता है ना कि मीन्स एक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको पता नहीं रहता कि कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे कोई कंडीशंस दे दी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे दे दिया होता ना कि y ऑफ 2 इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू अगर 2 होती तो y की वैल्यू -2 होती, तो मीन्स अगर ऐसा कोई कंडीशन दिया होगा तो हम यहाँ पे पुट करके ना सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से यही इक्वेशन रख के हम सी की वैल्यू रख देते हैं। ओके, सो वो हो जाएगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। अभी फिलहाल ये जनरल सॉल्यूशन है। ओके, जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया, ये लास्ट पेज में मैंने समझाया था आपको कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर
numbers of arbitrary constant equal to number of order means order of differential equation. ओके, सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया. तो मैं इस इक्वेशन को अच्छे से लिख दूंगा, 9y² माइनस सॉरी प्लस 4x² इक्वल टू 2c. ओके, अब 2c को ना मैं वापिस फिर से c डैश कर दूंगा, 9y² प्लस 4x² इक्वल टू c डैश. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन क्वेश्चंस. ओके, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड. और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप होमोजेनस से भी कर सकते थे, होमोजेनस मेथड से भी कर सकते थे. अब होमोजेनस मेथड क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं जो बाकी के जो मेथड्स है, बाकी के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा. और उससे पहले मैं आप लोगों को ऑर्डर दिखा दूँ, ऑर्डर के क्वेश्चन दिखा दूँ. ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँगा अभी. यहाँ पे हम देख सकते हो कि d² y अपॉन dx² इक्वल टू y प्लस dy/dx का स्क्वायर का होल, इसका होल 1/4. तो ये जो 1/4 है ना, मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, तो ये हो जाएगा d² y अपॉन dx² की पावर 4. यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू y प्लस dy/dx की पावर स्क्वायर. ओके, तो अब क्या कि यहाँ पे जिसकी जो ऑर्डर है ना, सबसे बड़ा डिफरेंशियल डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 है, तो ऑर्डर इक्वल टू 2 हो जाएगा. ओके, ऑर्डर 2 हो गया. और सबसे बड़ा पावर का दिख रहा है 2 4, तो 4 बड़ा है, तो डिग्री इज इक्वल टू 4. और डिग्री और ऑर्डर में कोई मीन्स रिलेशन नहीं है ना, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है. ओके, सो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ आपको एक चीज़ दिखा दूँ. यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन सिलेक्टिव है, और मैंने क्यों इसको लिया है वो उसके पीछे में वजह बताऊंगा. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डेरिवेटिव ना, ये जो dy/dx है, या तो फिर यहाँ पे कोई टर्म ले लो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल x है, y है, यहाँ पे x ले लेता हूँ, dy/dx है, d/dx है, ये वाला टर्म यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे y हो, x हो, t हो, कोई भी हो, ये वाला जो टर्म है ना d/dx या d/dt, d/dy, जो भी जो डेरिवेटिव का टर्म है, अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन टर्म्स के एंगल्स में आ जाए, तो उसके अंदर डिग्री नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यही देखेंगे कि इसकी जो ऑर्डर है, सबसे बड़ा जो पावर है d²/y, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, d²/y, तो स्क्वायर, तो ऑर्डर O इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री d इज नॉट defined. Okay, now in this question dy equal to y plus sin x dx. okay, sin x dx. यहाँ पे एक चीज नोट करो, साइन, जैसे कि मैंने इधर बताया, यहाँ पे जो इसके अंदर क्या था कि साइन की जो एंगल टर्म्स थी, जिसके अंदर साइन का एंगल, साइन का जो वैल्यू है वो चेंज होता था, वो वाला टर्म के अंदर डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर साइन एक्स अलग दिया हुआ है, साइन एक्स इज अ टर्म. ओके, इसको मैं मान सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, नो डाउट, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, नो डाउट, बट इसके अंदर ये फंक्शन मीन्स इसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसकी ये फंक्शन ऑफ डी नहीं है, इन द सेंस, समझ में आ रहा है. तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ. ओके, इफ एनी, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, इफ एनी डेरिवेटिव है ना, यानी कि डी प्रेजेंट इन एंगल टर्म, मैं एंगल टर्म को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा. ओके, प्रेजेंट इन एंगल टर्म, सो डिग्री इज नॉट डिफाइनिंग. सो इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ बिना किसी इधर उधर के बात किए. ओके, dy/dx. अब ये वाला जो dx था ना गाइस, ये वाला जो dx था ना वो अलग था, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया. dx इक्वल टू y प्लस साइन x. ओके,
ये वाला टर्म आ गया। अब इसका जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो ऑर्डर हो गया हमारा 1। अब मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव, ओके, वो कितना है 1, तो यहाँ पे ना इसकी पावर 1 है, 1, सो डिग्री इक्वल टू 1। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो हो गया 1, सबसे बड़ा पावर वो हो गया 1, तो इसका जो आंसर होगा, दी आंसर ऑर्डर 1 डिग्री 1, सिंपल। तो सो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो अगर आप लोगों को ना ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सो जाते जाते प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अच्छा नहीं लगता कि आप लोग वीडियो देखते हो और फिर मीन्स बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, या तो फिर ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या मैं कुछ समझाने में दिक्कत कर रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। नया नया चैनल है, अगर आप शेयर करोगे और मेरे को व्यूज़ मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एज स्टूडेंट मैं भी आपको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ बुक्स चाहिए, तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आई यूज़ टू डाउनलोड बुक फ्रीली। ओके, मैं भी खुद बुक्स नहीं खरीदता, मुझे ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ओके, सो अगर आप लोगों को ऐसी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने। मैं सोच रहा हूँ कि ना मेरी एक खुद की एक कम्युनिटी बनाऊँ, ताकि उसके साथ काफ़ी स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहे और उनको फ़ायदा पहुँचता रहे। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।